Good morning, students. This is KTG lecture number 5. This was the homework given to you, what I have written on the right side. So first we'll be taking up the doubts. If time permits, I will take the remaining questions of assignment 1. By chance, if degrees of freedom is there under this, we will not do those questions because I have not yet taught you degrees of freedom. Okay, thereafter, if time permits, I might start with assignment number 2. Last 15 minutes will be your DCT. There are 10 questions only, but there are 2-3 calculations involving questions. So your last 15 minutes will be DCT. चलो बेटा शुरू करें. ये संडे फिजिक्स है ना? So portion is already posted on your group. Ongoing chapters: refraction and kinetic theory of gases. Are we on assignment number 1 first? Are we on assignment number 1? उसमें एक दो क्वेश्चंस पेंडिंग थे, मुझे याद है. हाँ, वो पहले खत्म करते हैं. असाइनमेंट नंबर 1, आर यू देयर? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मैंने बोला था मेरे लिए छोड़ दो. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मैंने बोला था मेरे लिए छोड़ दो. If small m is mass of one molecule, underline small m, underline molecule, and if big M is molecular weight, then Avogadro's number is what? याद करो बेटा, याद करो. N is mass of the gas upon molecular weight, right? Mass of the gas upon molecular weight मतलब mass of one molecule into number of molecules, and this is mass of one molecule into Avogadro's number. बराबर? I repeat, N is number of moles. It is mass of the gas upon molecular weight. Mass of the gas is mass of one molecule into number of molecules, and mass of the gas molecular weight is mass of one molecule again upon Avogadro's number. Now, if you compare this, you will get the answer. Check बेटा, numerator के साथ numerator को compare करो, denominator को denominator के साथ compare करो, right? It is something like if A upon B is 1 upon 2, right? Then A and B are in the ratio 1:2. इसका मतलब ये 2 upon 4 भी हो सकता है, इसका मतलब ये 3 upon 6 भी हो सकता है, इसका मतलब ये 100 upon 200 भी हो सकता है, and so on. 1-to-1 comparison. So if M is compared with M times M0, I think we are expected to find out Avogadro's number. So therefore I get M is equal to Mn0, right? क्या पूछा है? Avogadro's number पूछा है. बस यही आपका आंसर हो गया. यही आपका आंसर हो गया. चेक करो प्लीज. This is question number 5 of assignment number 1. जो पेंडिंग था, मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस मेरे लिए छोड़ दो. So your answer should be Bombay. Your answer should be Bombay. Question number 6. Question number 6. Which of the following is a correct expression for molecular weight? Correct expression for molecular weight, underline molecular weight. Right? See, number of moles is mass of the gas upon molecular weight. That means it is mass of one molecule into number of molecules upon molecular weight. Right? Now first let us check इसमें अपना data match हो रहा है कि? I think yes. I think yes. यही आपका आंसर हो गया. चेक करो. ये आपका आंसर हो गया. ऐसा कोई ऑप्शन है? If N is equal to Mn upon M, इसका मतलब molecular weight is equal to Mn upon छोटा n. Yes or no? You have to be very careful, because the theoretical questions are symbols wise. एक symbol इधर उधर हुआ ना, meaning change हो गया. इसको ध्यान से देखोगे ना, छोटा n is multiplied with बड़ा n, and छोटा m is multiplied with बड़ा n. Are you getting this? बड़ा n छोटा n, बड़ा n छोटा n. Yes or no? बड़ा m into छोटा n is equal to छोटा n into बड़ा n. समझा बेटा? इसका लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने बोला था कि मेरे लिए छोड़ दो. करेक्ट? नाउ विल यू प्लीज चेक असाइनमेंट 1 में between 1 and 10 was anything pending? असाइनमेंट 1 में will you please check between 1 and 10 was anything pending? Between 11 and 15 was anything pending? Between 11 and 15 was anything pending? Between 16 and 20 was anything pending? Sorry?
Assignment 1 में we stopped at 50. Pencil. We stopped at 50. No worries. Now let us take care of your doubts of practice paper 1. Let us take care of doubts of your practice paper 1. मुझे एक रफ आइडिया दो, ये कितने MCQs थे? काउंट किया है? जरा फटाफट काउंट करो please. Because I have to plan the timing of this lecture. That's why. फटाफट काउंट. 33 MCQs. Okay. कितना doubts आया approximately? Not more than 5? Not more than 5, correct? What about second set of questions? 32. So total 65 MCQs were homework. इसमें कितना doubts आया बेटा? Sorry. 2, 3, 4. At the most, can I say amongst the 65 questions you had doubts in approximately 10? Sure? एकदम पक्का? Okay, चलो शुरू करें. Practice paper 1. Practice paper 1. Between questions 1 and 3. Any doubt? Because 4 और 5 मैंने बोला नहीं था. Between questions 1 and 3. Any doubt? Don't compromise anywhere, please. पहला वाला क्वेश्चन समझो बेटा. थर्ड का आंसर इज 2. करेक्ट. मुझे नहीं पता है पीछे रॉन्ग दिया है क्या? पीछे 4 दिया. ठीक है, मैं अपने बुक में नोट डाउन करके रखता हूं. आंसर इज 2. आंसर इज 2. आई हैव सॉल्व्ड ऑल दिस. Why 4 is wrong? The mean free path of a gas molecule depends upon the average distance traveled by a molecule between two successive collisions is Bombay. The second one is does not depend on the temperature. थर्ड की बात कर रहे हो. ओके, पहले तो सेकंड का आंसर बॉम्बे. ओके, थर्ड में डाउट है. ओके, if delta t is the time spent by the molecule in a collision and is t is the time interval between two successive collisions, time for which one molecule is in contact with the other molecule is less compared to the time taken by the molecule to travel from one location to the other location. इसका मतलब fourth one is correct. ओके, आपका डाउट किसमें है? नहीं, मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा था. सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज 2. मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज 2 बोल रहा था. मैंने थर्ड के बारे में बोला ही नहीं. थर्ड का आंसर 4th है. Why not 2? Because it is very very small. The time for which one molecule is in contact with the other is few microseconds, whereas time taken by the molecule to go from one location to the other location may be a second, maybe 2 seconds, maybe 3 seconds. The time for which one molecule is in contact with the other is microseconds or less than that. Yes or no? That's why very very small. तो बेटा आर्ग्यूमेंट लिखो और बाद में उसमें very very small को अंडरलाइन करो. Take down please. Time of impact is usually microseconds. Time of impact is usually microseconds, whereas time to travel may be milliseconds, seconds, etc. Time of impact is approximately few microseconds, whereas time to travel maybe milliseconds or seconds. याद करो बेटा, इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने. The time taken by the ball to travel from the bowler to the batsman is very large compared to the time for which the ball is in contact with the bat. दूसरा एग्जांपल फुटबॉल की गेम का हो सकता है. तीसरा एग्जांपल बिलियर्ड बॉल्स की गेम का हो सकता है. चौथा एग्जांपल बैडमिंटन का हो सकता है. पांचवा एग्जांपल टेनिस के गेम का हो सकता है. The time taken by the ball to travel from one tennis player to the other tennis player is very large compared to the time taken by the ball to remain in contact with the racket. कितने सारे examples है practical life में. Yes or no? That's why very very small. Answer was 4th one. जिधर भी आपको लगता है ना बेटा पीछे की मैच नहीं हो रहा है, जरा मुझे वो बता देना, तो करेक्शन में बाकी मैचेस में दे दूंगा. Alright? फर्स्ट का आंसर 1, सेकंड का आंसर 2, थर्ड का आंसर 4th. First one.
A vessel contains 60,000 molecules of a gas. Due to a very fine hole, there are 10,000 molecules which escape. बेटा ये क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, बराबर, और 60 सीट्स भी है, मतलब आपको 1 to 1 बैठना पड़ेगा। लेकिन ये क्लास में से 10 स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया है, मैंने बाहर निकाल दिया, तो जो बाकी के 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको थोड़ा फ्रीडम मिला बैठने को, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा, कॉमन सेंस, वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट, वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स तो जितने हैं उतने ही हैं, तो कहने से उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। ये क्लासरूम की कैपेसिटी सपोज 60 स्टूडेंट्स है और इसमें 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं, बराबर, मतलब आप लोग एकदम कट टू कट बैठे हो। अब इसमें 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप आराम से बैठे हो। इसमें 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप एकदम आराम से बैठे हो। 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आराम से सो के बैठ सकते हो, ऐसा पाव लंबे करके एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा है, 2 स्टूडेंट्स बैठे पढ़ रहे हैं, जिधर बैठना है उधर बैठो। इसका मतलब बेटा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चेंज नहीं हो रहा है, राइट, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। सो कहना है उनको ज्यादा फ्रीडम मिला मूव होने को, यस और नो। एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से समझा। आर्ग्यूमेंट लिखो, सिंस 10,000 मॉलिक्यूल्स एस्केप, since 10,000 molecules escape, therefore 50,000 molecules get more freedom to move, since the volume of the vessel is the same. ऐसा तो नहीं हुआ ना बेटा कि 10,000 मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए तो हम लोगों ने कंटेनर का साइज कम कर दिया, यस और नो, आर यू गेटिंग इट? वेसल सेम ही है, वेसल सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होल्ड पे था। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के बीच में किसी को कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में किसी को कोई डाउट? डोंट कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर प्लीज, बिकॉज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और मैक्सवेल्स इक्वेशन के लिए अलग लेक्चर लगेगा। 10th one. The root mean square velocity. The speed of hydrogen molecules at 300 Kelvin is 1930. अब कॉमन सेंस बेटा याद करो, मैंने जो डेटा दिया था, मैंने बोला था सब स्टैंडर्ड वैल्यूज टू रिमेंबर, उसमें मैंने हाइड्रोजन का स्पीड 1840 दिया था, तो फिर ये 1930 क्यों है? बिकॉज ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, यस और नो, ये 27 डिग्री सेल्सियस है। That's why the velocity value of hydrogen molecule is more. ये 300 Kelvin पे दिया है। Then what is the root mean square velocity of oxygen molecules having the same mass at 900 Kelvin? Same mass बोला है, that means is only directly proportional to root of temperature. अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा? C is equal to root of 3RT upon M. That means I got 3 relations. 1, C is directly proportional to root of T, provided mass is constant. बोला है उन्होंने। C is inversely proportional to root of molecular weight, provided temperature constant, and C is directly proportional to root of temperature also, and inversely proportional to root of mass also, when you take different gases at different temperatures. अभी तेरा temperature 3 times हो रहा है शायद, बराबर, temperature 3 times हो रहा है, तो speed root 3 times होना चाहिए, yes or no? root 3 times होना चाहिए, so answer is 1930 into root 3. वो लोग ने मास बोला है, सेम मॉलिक्यूलर, लाउडली बोल वो लोग ने मास बोला है, मॉलिक्यूलर वेट अगर डिफरेंट है to the root mean square speed at 300 Kelvin is 1930. The root mean square the oxygen molecule ही बोला है ना, molecular weight नहीं बोला है, बराबर है। उन्होंने molecule के बारे में बात की है, mass of one molecule, not the entire molecular weight. उन्होंने वही आंसर तो एक मॉलिक्यूल का दिया। हाँ नहीं उन्होंने सेकंड में आंसर वही दिया अगर मास कंसीडर किया तो। अच्छा, हाँ तो वो गलत है, हाँ, सिर्फ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, राइट। 11 to 15 में कोई डाउट? 11th to 15th explanation for 12. Okay, the molecules of an ideal gas possess only kinetic energy. याद करो बेटा, the volume of all the gas molecules is negligibly small. They are so extremely small that they hardly possess any energy in the form of potential energy. Potential energy is possessed by the body on account of its configuration or location. मैं ये सेकेंड फ्लोर पे खड़ा हूँ और मुझे अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी हाइट के टर्म्स में ढूंढना है, देन माई पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, बट आई एम एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग
राइट, एंड नाउ माय पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी डिसाइडेड एज पर द शेप. मेरे पास एक बिलियर्ड बॉल है और मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इज हार्डली एनीथिंग. यस और नो? दैट मीन्स द एंटायर कंट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट बाय काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज डोंट फॉरगेट द गैस मॉलिक्यूल्स मूव वेरी फास्ट. अब लाइटेस्ट मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, और सपोज हम लोग ऑक्सीजन तक जाते हैं, तो ऑक्सीजन का भी स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे 460 मीटर्स पर सेकेंड है, एंड 460 मीटर्स पर सेकेंड is, you can say, almost 1.3 to 1.4 times speed of sound also. So the major contribution is kinetic energy. अगर potential energy suppose 1 joule है, तो kinetic energy lakhs में है, millions में है. So आपका potential energy is ignored. Are you getting this? Reason, the volume of gas molecules is very small compared to the volume of the container. 12th का argument समझा? 13, हाँ. Why can't it be? Option 2. Check करते हैं. Find out the wrong statement. Second statement right है ना बेटा? Volume of gas molecules. अभी बोला हम लोगों ने. Volume of gas molecules is very very. याद करो, मैंने बोला था कि क्लासरूम में सपोज एवोगैड्रोस नंबर का मॉलिक्यूल है. एवोगैड्रोस नंबर बिग नंबर 6.023 to 10 to 26 मॉलिक्यूल्स पर किलोमोल. लेकिन अगर सारे मॉलिक्यूल्स में मैं एक स्पॉट पे लेके आऊँ तो वो शायद टिप ऑफ द पेन होगा. Are you getting this? That's the reason we said that volume of all the gas molecules is very small compared to the volume of the container. Ideally zero. Ideally zero. लेकिन हम लोग ये भी बोलते थे बार बार कि ideally nothing is ideal. अब ये क्लासरूम का वॉल्यूम है सपोज 4 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 मीटर 64 मीटर क्यूब, और सामने वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है लेट अस से 2.6 into 10 to minus 27 मीटर क्यूब. लेकिन है ना, वो एग्जिस्ट तो करता है ना. बाद में हम लोग ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि 10 to minus 27 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. वो बात की बात हो गई. मतलब एकदम आइडियली सोचो तो वो जीरो नहीं होता है, बट यू कैन से वेरी 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 स्मॉल. सो योर आंसर इज दिल्ली, बिकॉज उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा. आई होप आई एम रीजनेबली स्लो. वी आर ऑन 14. हाँ सर, पर आइडियल गैस का assumption उसमें तो हम उसको पॉइंट मास गिन रहे थे ना, तो पॉइंट मास गिना बेटा तो तूने. नेग्लिजिबल नहीं गिनेंगे उसको फोर्थ ऑप्शन में. उन्होंने ये बोला है ना कि मास ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो. मास ऑफ एन आइडियल गैस जीरो नहीं होता है, वॉल्यूम जीरो होता है. वॉल्यूम जीरो, मास और वॉल्यूम बेटा दोनों जीरो हो गया तो डेंसिटी इज हाईली अनडिफाइंड. नो, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड. जीरो अपॉन जीरो इज नॉट एट ऑल डिफाइंड. यस और नो? मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ वैल्यू देते, सो मेनी किलोग्राम, तो ही तो उसका इम्पैक्ट होगा ना. मैं तुझे ऐसी कोई चीज़ मार रहा हूँ कि जिसका मास ही नहीं है, तो तेरे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? लेकिन अगर वो एकदम छोटी चीज़ है और मैं एकदम बड़े स्पीड से मार रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट होगा. आर यू गेटिंग दिस? मैं बुलेट मार रहा हूँ, मास सिर्फ 10 ग्राम है, बट इट कैन किल यू. दैट इज द रीजन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम कम्स. While going momentum was mu, while coming momentum was minus mu. Therefore net moment, change momentum was twice mu. Change in momentum upon time is rate of change of momentum, which is force. That force is exerted on some area, so force upon area, so pressure. Good you asked me this question. Very good you asked me this question. पूरा explanation समझा बेटा? अगर mass और volume में दोनों zero लेता हूँ, how will I define density? Tell me. Density will be mass upon volume, 0 upon 0. The total undefined thing. Yes or no? फिर P equal to 1/3 rho c square कैसे आया? लॉजिक समझा? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आइडियली नथिंग इज आइडियल, बट व्हेन यू वांट टू स्टार्ट विथ समथिंग, टेक द आइडियल सिचुएशन एंड देन टेक द रियल सिचुएशन. जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू करेंगे ना, उसमें एक इक्वेशन है, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस. Van der Waals equation for real. That means there you are in the reality world. अभी उसका एकदम सिंपल लॉजिक ये है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन ये है ना, PV is equal to nRT. अभी तूने मुझे पूछ ही लिया है तो बोलता हूँ, this is ideal gas equation. But then real gas equation was proposed by Van der Waals. He said that P is not P, it is P and something. And this something was defined as A upon V square. A is Van der Waals constant. This V is not V. This is V minus something is equal to nRT.
अब इसका एकदम मस्त लॉजिक ये था कि अगर एक क्लासरूम में बेटा एक भी स्टूडेंट नहीं बैठा है, एक भी नहीं, then what is the probability of molecules to occupy the volume? पहला मॉलिक्यूल एंटर हुआ, पहला स्टूडेंट एंटर हुआ, तो वो स्टूडेंट के लिए कितने चांसेस है ये सीट ऑक्यूपाई करने के? सबके सब, वो स्टूडेंट चाहे उधर बैठ सकता है। बट व्हाट अबाउट द सेकंड स्टूडेंट एंटरिंग? उसके लिए एक चांस कम हो गया। व्हाट अबाउट द थर्ड स्टूडेंट? उसके लिए 2 चांसेस कम हो गए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? मतलब हम लोग जो वॉल्यूम मान के चलते हैं वो वॉल्यूम रियली मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। 60,000 मॉलिक्यूल्स है सपोज, उसमें से एक मॉलिक्यूल ही क्लास में है, तो 59,999 के लिए एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम का स्पेस कम हो गया। लॉजिक समझा? सुपर श्योर? अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटा ये आइडियल गैस इक्वेशन था और ये रियल गैस इक्वेशन होने वाला है। यू हैव टू वेट फॉर द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स एंड नेम ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वैन डर वाल्स इक्वेशन, राइट? शायद केमिस्ट्री में भी होगा, आई डोंट नो। सुना है आप लोगों ने वैन डर वाल्स इक्वेशन? नाम सुना है एटलीस्ट? ओके, डोंट वरी, this is part of physics and chemistry both. You are going to study this. This was question number 15, 16 में किसी को डाउट? 15 या 16 में किसी को डाउट? 19 to 24 में किसी को डाउट? 19 कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, कॉन्सेंट्रेट। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 1200 meters per second. If the atmospheric pressure is tends to 5, then the density of the gas is approximately, उन्होंने खुद नहीं approximately बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर बोलो प्लीज। 19 and this is practice paper 1. Practice paper 1 question number 19. Don't start with me. P is equal to 1/3 rho c square. If you can help me with pressure value, 10 is to 5. 10 is to 5 is 1/3. Rho का वैल्यू पूछा है, ओके। C का वैल्यू 1200, उसका स्क्वायर। So can I say 10 is to 5 into 3 upon 1200 into 1200 should be equal to rho. इसका मतलब न्यूमरेटर इज 30, बराबर? बिकॉज 1 2 3 4 1 2 3 4 गया, तो एक 10 बचा ऊपर, तो न्यूमरेटर इज 30 एंड डिनोमिनेटर इज 144. दिस इज इक्वल टू रो। उन्होंने वैसे ही अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो कैन आई से रो इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 30 अपॉन 150. माय आंसर इज 1/5. दैट मींस 0.2. डेसिमल पॉइंट का गेम था, डेसिमल पॉइंट का गेम था। एक ऑप्शन 0.02 भी था, बाद में एक 0.3 था और एक 0.03 था। एम आई राइट? 0.1, अच्छा 0.1 0.2, मतलब द कॉम्बिनेशन वाज बिटवीन फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, बिकॉज थर्ड और फोर्थ तो बहुत ही छोटा था। यस और नो? योर आंसर इज 0.2. योर आंसर इज 0.2. प्रैक्टिस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 20 से 24 के बीच में कुछ 24 क्वेश्चन 24. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 gram molecule? 1 gram molecule means in a way they are talking about a mole of a gas. If it was 1 kilogram molecule, that means they are talking about a kilomole. Simple. 3/2 RT. 3/2 RT. आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। कोई बात नहीं ना बेटा, पावर्स देख, पावर्स कितने दूर दूर है। पहले का पावर 1000 है, दूसरे का 100 है, तीसरे का 10,000 है और चौथे का तो 10⁻³ है। 3.74 into 10⁻³ आया, राइट? तो 3.74 into 10⁻³ is 3740, which is closer to 3400. It cannot be closer to 130. It cannot be closer to 56000. So when you don't get exact answer, select the nearest answer. Perfect. 3740 आ रहा है बेटा। 3740 has to be closer to 3400, first option. It can't be closer to 5600, third option.
Second and fourth are anyways out of competition because second option is a 3-digit number and fourth option is 0.00374. समझा? मैंने ये कितनी बार बोला है? When you don't get exact answer, select the nearest answer. When you don't get exact answer, select the nearest answer. वो मिसमैच है, बराबर है, वैल्यू के हिसाब से वो मिसमैच है. लाइन से जाते बेटा, लाइन से जाते. 26 to 29 में 28. ओके, 20. ओके. N balls of each mass छोटा m is moving with velocity u hit the wall elastically normally in 2 seconds. Normally मतलब at right angles. Normally मतलब at right angles. Question number 20 देखो बेटा. ये एक वॉल है, ये मॉलिक्यूल इधर से गया, सामने के वॉल पे नॉर्मली टकराया. नॉर्मली मतलब एट राइट एंगल्स. तो व्हाट इज द जाने वाला मोमेंटम? इज इट mu? व्हाट इज आने वाला मोमेंटम? इज इट माइनस mu? तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? 2mu. ये कितने मॉलिक्यूल्स के लिए है? ये कितने मॉलिक्यूल्स के लिए? फॉर वन मॉलिक्यूल. Therefore, what is delta P for n molecules? Is it 2mu enza? This is for how many molecules? N molecules. और अभी उन्होंने क्या पूछा है? Rate of change of momentum in 2 seconds. तो what is delta P by delta T? Delta P मुझे मिला 2mnu और टाइम उन्होंने दिया है 2 seconds. 2 cancel. Your answer is MNU. Your answer is MNU. पूछने का स्टाइल अच्छा था. Can we say this is the force? तो लोग change in momentum for given time के बदले force भी पूछ सकते हैं. तो what is force? MNU. अच्छा क्वेश्चन था बेटा, खोपड़ी मत करो. कुछ भी नहीं आया तो कॉम्प्रोमाइज मत करो बिल्कुल भी. एंगल लेना पड़ता, cos थीटा. याद करवाओ किधर किया था? वेक्टर्स में किया था बेटा, वेक्टर्स में. कि एक मॉलिक्यूल के बदले उन्होंने शायद बॉल दिया था, वो आके ऐसे टकराया और ऐसे गया, राइट? तो बेटा यहाँ पे आपका इनकमिंग वेक्टर है तो इनकमिंग, आउटगोइंग वेक्टर है तो आउटगोइंग. सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम फॉर दिस? 0, because vectors in the same direction. But what is change in momentum? This. It was cos component. याद करो. ये बेटा थीटा था ना, ये थीटा था और ये थीटा था. इसको हम लोगों ने mv cos थीटा बोला था, इसको माइनस mv cos थीटा बोला था. तो आंसर वाज 2 mv cos थीटा. ये जो असाइनमेंट 2 के क्वेश्चंस है ना, उसमें 1-2 डायग्राम वाले क्वेश्चंस है, चेक करो. उसमें शायद ये क्वेश्चन है जो तूने मुझे अभी पूछा. एक बार क्रॉस चेक करो प्लीज. आर योर असाइनमेंट 2? हाँ, पेज नंबर बोलना बेटा, पेज नंबर 60. उसका आप 9th क्वेश्चन चेक करो बेटा. उसमें देखो वो मॉलिक्यूल एंगल पे जा रहा है ना? वो मॉलिक्यूल नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ऐसे जाना चाहिए था. देखो ऐसे. क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ असाइनमेंट 2. मॉलिक्यूल नॉर्मल मतलब ऐसे गया, वॉल को टकराया. उसमें मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम 2mv नहीं आएगा. कॉस कंपोनेंट आएगा या तो साइन कंपोनेंट आएगा. उन लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, बराबर. चलो नेक्स्ट वन. ये 20 था ना, 20. इट वाज अ गुड डाउट. वापिस 19 to 24 में और कुछ, 26 to 29 में कुछ, 26 to 29 में कुछ, सॉरी 27. एकदम इजी है बेटा, और नहीं कर सकते हैं. The temperature of an ideal gas decreases from 927 to 27. 927 मतलब 1200, 27 मतलब 300. तो टेम्परेचर 1/4 हुआ ना बेटा, तो स्पीड 1/2 हुआ. बोर्ड पे सॉल्व करके बताओ कि जरूरत नहीं है. टेम्परेचर 1/4 हुआ, तूने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया था. वेरी सिंपल बेटा. C2/C1 is root of T2/T1. Root of T2/T1 is root of 4.
रूट ऑफ 1/4 आंसर इज हाफ. 1 मिनिट तेरा 1/4 तक है. ओके. C2 upon C1 is root of T2 upon T1. तो ये तेरा 1/4 आया ना बेटा. इसका मतलब C2 is 1/2 of C1. इसका रूट. इतना सिंपल था. बस यही प्रॉब्लम होता है यार, तुम लोग सेकंड लास्ट स्टेप तक करेक्ट होते हो एग्जाम में. लास्ट स्टेप में कॉन्फिडेंस हिल जाता है और सिली मिस्टेक करके आ जाते हो. नीट इज नॉट अ टफ एग्जाम. पोर्शन ह्यूमंगस होता है. 1 ही 3 घंटे में सब कुछ याद रखना होता है. वो अपना दिन भी होना चाहिए, अपने साथ हेल्थ वाइज कुछ खराब नहीं होना चाहिए, अपने मेंटल स्टेबिलिटी लेवल्स मस्त होने चाहिए, एकदम बिल्कुल भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. अपने आप सब क्लिक होता है. नीट इज नॉट अ टफ एग्जाम, ट्रस्ट मी. बायो के स्टूडेंट्स जेडब्ल्यू में पेपर लिख के आते हैं. पीसीएम से ज़्यादा स्कोर करते हो लोग. बिकॉज बायोलॉजी स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ये होता है पीसीबी में तीनों में टफ फिजिक्स है, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करो. तो लोग एफर्ट ज़्यादा डालते हैं. पीसीएम वालों को थोड़ा क्या होता है एटीट्यूड, मुझे मैथ्स आता है ना तो मुझे फिजिक्स तो आएगा ही, तो उनके एफर्ट्स थोड़े कम होते हैं. पीसीएम स्टूडेंट डोंट फील ऑफेंडेड, इट्स अ फैक्ट. इट इज़ अ फैक्ट. आई विल शो यू. वो जो देखो लास्ट लड़की आर्या यादव है ना, प्योर बायो की स्टूडेंट है वो, अभी केईएम में. उसने टाइम पास के लिए जेडब्ल्यू में दिया था, कसम से बोलता हूँ. उसके बाद में वो सात्विक नारायण करके कोई लड़का होगा, इधर वो नहीं है, आपके रिजल्ट्स में कहीं पे होगा सात्विक नारायण. 95 and 100 इन जेडब्ल्यू में. अभी वो केईएम में या तो शायद लोकमान्य तिलक कोई टॉप मेडिकल कॉलेज में. टाइम पास के लिए जैन ने फिजिक्स दिया था उन्होंने, और मैं उनको बोलता था डोंट गिव इट एट द कॉस्ट ऑफ नीट. राइट. जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन नहीं करना है तुम लोगों को. 7 जनवरी को एग्जाम है, 6 जनवरी तक नीट का प्रिपरेशन. नीट का नॉलेज से कितना फिजिक्स मुझे आता है, सोचो कितना आता है. 100 में से 95. राइट. आर यू गेटिंग इट? 100% है. सो पीसीबी स्टूडेंट्स, यू वर्किंग वेरी हार्ड. ओनली थिंग इज कीप कूल. रूट ऑफ 1/4 वाज वेरी इजी. ओके. 26 to 29 में और कुछ? 26. Okay. Kinetic energy of translation of 20 gram of oxygen at 47 degrees Celsius. Simple beta. What is the formula for kinetic energy per kilomole? 3/2 RT. 1 kilomole के लिए 3/2 RT है. 10 kilomoles के लिए कितना? Question number please. 26. Kinetic energy per kilomole is 3/2 RT. Therefore, kinetic energy for n kilomoles, right? For n kilomoles, should be 3/2 nRT. nRT का मतलब mass of the gas upon molecular weight times RT. Mass of the gas कितना दिया? कितना ग्राम? 20 ग्राम. Molecular weight कौन सा गैस है? 32 ग्राम. ये ग्राम लिखा तो ये भी ग्राम लिखने का. एनीवेज वो यूनिट कैंसिल होने वाला है. आर और टी शायद दिया हो. कर लेगी बेटा अभी. श्योर. योर आंसर फॉर 26th शुड बी बॉम्बे. सेकंड ऑप्शन. 31 to 35 में कोई डाउट? देखो मेयर्स रिलेशन शुरू हुआ, ये आज आगे. 33, 32 and 33. ओके. 32 पहले. 32. Atomic weight of nitrogen is 14. Underline atomic weight is 14. इसका मतलब बेटा molecular weight 32 हुआ. Sorry 28. Molar specific heat at constant volume is 42. Then the principal specific heat is. किसने पूछा ये 32? 32 किसने पूछा? सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है. 1 मिनट, एकदम सिंपल है. बड़ा सी इस बड़ा m टाइम्स छोटा सी. राइट. मॉलिक्यूलर वेट 28 लेने का, बिकॉज एटॉमिक वेट 14 है. कौन सा सी दिया और कौन सा सी पूछा है? प्रिंसिपल दिया है कि मोलार दिया है? मोलार कितना दिया है? 42. अपन 14 लिया तो मैं लड़कियों के हाथ नहीं उठाता. नेक्स्ट वन 33 पूछा ना किसी ने, तो 33.
मेयर सिलेक्शन आता है तो ये आना ही चाहिए. The ratio of principal specific hits is 1.4. What is the meaning of ratio of principal specific hits? Gamma is equal to बड़ा CP अपन बड़ा CV भी ठीक है, and छोटा CP अपन छोटा CV भी ठीक है. Is it 1.4? Given. That means CP is 1.4 times CV. Given capital R is 8,400 joule per kilomole per Kelvin and J is 4,200. Then molar specific heat at constant pressure will be. Can I say CP? CP is equal to CV plus. उन्होंने R और J दोनों दिया है ना? R और J दोनों दिया हुआ है. Yes or no? कोई भी एक स्पेसिफिक हीट. अच्छा पहले मुझे ये करना पड़ेगा. CP minus CV is equal to. CP minus CV is equal to वो करना पड़ेगा. So can I say 1.4 CV minus CV is equal to 8,400 upon 4,200. इसका मतलब 0.4 CV is equal to 2. CV is equal to 2 divided by 0.4. 20 divided by 4. This is 5. Therefore CP is 1.4 CV. 1.4 5 za. Your answer should be 7. बराबर? किया हुआ क्वेश्चन है बेटा. मैंने बोला था याद है, इसलिए देखो ये संडे के एग्जाम में मैंने मेयर सिलेक्शन भी डाला है, क्योंकि मैंने बोला था कि मेयर सिलेक्शन रिपीट है इसमें. करेक्ट? 33. ओके. 34 से 38 में किसी को कोई डाउट? 36, 36, 36, 36. किस महान आत्मा ने ये पूछा? 36 किसने पूछा? अरे डरो मत, इट्स ओके. काफी सालों पहले की बात है. Latent heat of fusion of ice is 80 and latent heat of vaporization of steel is 540. Divided into two categories. Le was approximately 40. Perfect was 40.27 and Li therefore was 500. Le was minus 0.002412 and therefore Li was 80.002412. Right? That means this value is more than this because of anomalous behavior. तो किस महान आत्मा का ये क्वेश्चन है? आप हैं वो? आंसर होना चाहिए बॉम्बे. आंसर होना चाहिए बॉम्बे. इधर लिखो. Recall the standard values of LF, LV and LI, LE. टोटल 6 वैल्यूज थे, याद है? नेक्स्ट वन. 39, 39, 39, 39, 39. बहुत सिंपल है बेटा. एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. So whether it is oxygen molecule or it is nitrogen molecule, kinetic energy of a molecule पूछा है. Kinetic energy per kilogram नहीं पूछा. R/N0 is K ना बेटा. तो K is Boltzmann's constant. और दोनों गैस मॉलिक्यूल्स के लिए टेम्परेचर सेम है. That means average kinetic energy सेम. एक सिंपल बात बताओ, ये क्लासरूम में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है कि नहीं? Because it is air. 78% nitrogen, 21% oxygen. Room temperature is suppose 27 degrees Celsius right now. That means 300 Kelvin. तो वो 300 Kelvin दोनों molecules के लिए है ना. So on an average they move with the same speed. Kinetic energy per kilogram नहीं पूछा है. Kinetic energy per kilogram पूछा. Then we say heavy molecules go slow, lighter molecules go fast. This is average kinetic energy per molecule, which is directly proportional to absolute temperature. Temperature same है. That means whatever was the RMS, kinetic energy पूछा है ना, of oxygen molecule should be kinetic energy of nitrogen molecule also. So one line argument, average kinetic energy अगर लिखना ही है तो average kinetic energy per molecule is 3/2 kT. Constant, therefore constant. Yes or no? So this was practice paper 1. All doubts cleared? This was practice paper 1. All doubts cleared? Are we on practice paper 2? Are we on practice paper 2?
चलो बेटा 1 और 2 में किसी को डाउट? 1 और 2 में किसी को डाउट? 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन दोनों का चाहिए? नहीं समझा क्या बोल? किधर दिया है ऐसा पूछ रही हो? ओके देख लेते, नहीं दिया तो मैं बोल देता हूँ. The absolute temperature of a gas is determined by, very simple, C is root of 3 RT by M. Yes or no? तो temperature is decided by speed and speed is decided by temperature. चाहिए तो बेटा आर्ग्यूमेंट लिख के रखो. आपके पास प्रैक्टिस पेपर का वर्किंग स्पेस नहीं है तो बेटा ऐसे लिखो, ऐसे. ओके इसका सॉल्यूशन का कॉपी चाहिए इसके, बिकॉज मुझे भी वर्किंग स्पेस नहीं मिला था तो मैंने भी मार्किंग करके पूरा सॉल्यूशन लिखा है सिस्टमेटिक. यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ दिस? आप लोग जब डीसीटी लिख रहे हो मैं प्रिंटिंग में भेजता हूँ. बिफोर यू गो होम आई विल गिव यू प्रैक्टिस पेपर 1 and 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन. बीच में जो क्वेश्चंस छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े कि शायद या तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन है या तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के क्वेश्चंस. एनीवेज व्हेन यू आर बिजी आई विल जस्ट सेंड दिस फॉर फोटोकॉपी. You wanted argument for second question also. If there are no intermolecular forces between the gas molecules, then the pressure of given mass of a gas will, answer is increase. अब इसका मस्त argument सुनो. ये कोई बंदा है और मैं इसके साथ मारामारी कर रहा हूँ, right? तो I am exerting this pressure on that. अभी मेरा फ्रेंड मुझे रोक रहा है, नहीं मारामारी मत करो. तो मेरा फ्रेंड मुझे पुल कर रहा है, right? That means my friend when he is pulling me, that means that is the intermolecular force of attraction. तो मैं जो impact से इसको मार सकता था वो मैं नहीं मार पा रहा. Yes or no? That means if intermolecular attraction is there, the extent to which I could exert the pressure, right, is less. वो लोग बोले कि there is no intermolecular force. मेरा फ्रेंड मुझे रोक ही नहीं रहा है, वीडियो बना रहा है, मस्त. This is the human mentality. आप रोड साइड पे जाओगे ना, दो जन मारामारी करते हैं ना, तो बहुत कम लोग होंगे जो उनको सेपरेट करेंगे, मजे लेंगे. Are you getting my point? That is this बेटा, that is this. ये आर्ग्यूमेंट एक्चुअली वेंडर वाल्स इक्वेशन में आने वाला है कि इन रियलिटी देयर इज सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यस और नो? तो अगर वो नहीं होता तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता. लॉजिक समझा? नेक्स्ट वन. Next one. Shh. Okay. Between 4 to 10, any doubt? 9. The lowest possible temperature in the outer space is 2.7 Kelvin. मतलब आउटर स्पेस में ऑप्टिकल पायरो हेलियोमीटर ये सब यूज करके सपोज साइंटिस्ट को कोई एक लोकेशन पे टेम्परेचर मिला है 2.7 केल्विन. देन व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट दिस टेम्परेचर? इजी है बेटा, एकदम इजी है. डू वी नो दिस? क्वेश्चन नंबर बोलो प्लीज. प्रैक्टिस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9. ध्यान से सुनो. डू वी से C1 upon C2 is equal to root of T1 upon T2? तो can I say speed upon speed at 0 degree Celsius is temperature upon absolute zero, not absolute zero, 0 degree Celsius. C upon, ये स्पीड याद करो बेटा, 1840 होता है किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्टैंडर्ड स्पीड है 1840, राइट? टेम्परेचर उन्होंने दिया 2.7 केल्विन, राइट? तो इसको बेटा मैं 273 के बदले 270 केल्विन ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली. मैंने तो बोला ही था सब स्टैंडर्ड वैल्यूज. एक मिनट, जरूरत ही नहीं है. मैंने बोला था, मैंने एक टेबल दिया है, देखो सम स्टैंडर्ड वैल्यूज एट एनटीपी. 4 ही तो याद रखना है बेटा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन.
ऊपर क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको आया। एग्जैक्टली तो स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखने का फायदा समझा। अब ये क्वेश्चन में दे ओनली वांट यू टू रिमेंबर स्टैंडर्ड वैल्यू। उन्होंने किधर दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्पीड 1840 होता है, वो हमको मालूम होना चाहिए। मैंने बोला था याद करो, आपको मैंने शायद सिनॉप्सिस में कहीं पे तो लिखवाया है कि सम स्टैंडर्ड वैल्यूज लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में। किसका डाउट था बेटा ये? If we forget the value, then कैसे solve करेंगे? कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज में तो बेटा लेना पड़ेगा, बिकॉज उसका वैल्यू ढूंढने का जो प्रोसीजर है ना वो बहुत लेंथी है। बहुत लेंथी कैसे? C is equal to root of 3RT upon M, राइट? R मालूम है, टेम्परेचर 273 लेने का, विच इज अ बोरिंग नंबर, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 लेने का, और उसके बाद में रूट लेने का। दैट इज हमने ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर R को किलोमोल्स के टर्म में लेना पड़ेगा। किलो, तो सामने तो किलोग्राम में लेना। समझा बेटा? अभी तो आपका आंसर आना चाहिए 1/10, बिकॉज 2.7 upon 270 is 1/100, राइट? इसमें कमेंट लिखो विदाउट फिल, बोल्ड लेटर्स में। Better to remember the standard values of RMS velocity of gas molecules at NT. Better to remember standard values of RMS velocities of gas molecules at NTP. ब्रैकेट में लिखो हाइड्रोजन कॉमा हीलियम कॉमा नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन ओनली। 4 ही वैल्यूज तो याद रखने। मेरा तो इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग सजेशन ये भी रहेगा, मैंने डेंसिटी का वैल्यूज भी दिया है उधर, ये आपको साउंड के चैप्टर में काम में आएगा। तो मैं तो बोलता हूँ पूरा चार्ट ही याद रखो मस्त। जाओ वापस वो चार्ट पे जाओ, स्टार रेज़ टू 20 लिखो और बोलो रिमेंबर। बेटर टू रिमेंबर भी मत लिखो, मेमोराइज लिखो, मेमोराइज। You have written this chart on page number 27. Check please. You have written this chart on page number 27. Are you with me? Sixth one also? Okay. Sixth one. पूछने का स्टाइल मस्त, गुड, पूछने का स्टाइल मस्त है। Sixth question, everybody. There are 5 molecules having velocities 10, 20, 30, 40, 50. तो naturally सबके बीच में spacing same है, तो mean velocity is the middle number. So what is mean velocity? 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 upon 5. So obviously it is 30. तो ये तो मेरा आंसर आ गया, right? What will be CRMS? Is it 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन 5। अगर मैं रूट नहीं लेता तो ये मीन स्क्वायर था, रूट ले रहा हूं, दैट मीन्स इट इज रूट मीन स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 अपॉन 5। 10 बाहर लिया मैंने, 100 का रूट बाहर लिया मैंने। 25 plus 16 41 50 55 upon 5 root of 11 into 10, root of 11 is 3.2 के आसपास। 10 का रूट was 3.162, तो 11 का रूट will be approximately 3.2 into 10। तो ये हो गया बेटा CRMS which is 32। 32 upon 30 क्या 30 upon this पूछा कि 30 upon this? 30 upon this। Answer should be little more than 1। Answer should be little more than 1। और मेरे पास ऑप्शंस एकदम दूर दूर है, मुझे डिसाइड सिर्फ ये करना है कि 30 upon 32 लेना है कि 32 upon 30। मेरा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन 11 टाइम्स है, या तो 1/11 है, तो वो तो नहीं हो सकता है, तो मेरा आंसर 1.1 टाइम्स, राइट? अच्छा क्वेश्चन है लेकिन 7 to 10 में कोई डाउट? 7 to 10, 13 to 17, 13 to 17, 16, 16, 16, 16, 16. A thin bulb containing air at normal atmospheric pressure at 41 degrees Celsius. I want you to underline 41 degrees Celsius. Is sealed. The bulb is heated to 198 degrees Celsius.
तो बेटा टेम्परेचर 1, क्वेश्चन नंबर बोल. Okay, temperature 1 is 41 degrees Celsius. That is 41 plus 273. कितना आ रहा है ये? टोटल बोलो. 411 314 Kelvin. Temperature 2 का वैल्यू प्लीज. 198 डिग्री सेल्सियस. टोटल 471. प्रेशर 1 कितना दिया था? 180 है. प्रेशर 2 पूछा है. P2 upon P1 is P2 upon P1. P2 upon P1 is P2 upon P1. समझा? अच्छा, ऑलरेडी ऑप्शंस भी एटमॉस्फेयर में ही दिए हैं, तो नो नीड टू कन्वर्ट 1 एटमॉस्फेयर इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अदरवाइज 1 एटमॉस्फेयर is 1.013 into 10 to 5. You can approximately take 10 to 10. आंसर बॉम्बे आ रहा है बेटा इसका. इसका आंसर बॉम्बे आ रहा है जिन्होंने किया 15. बहुत सिंपल है बेटा. 2 किलोग्राम एयर था, 2 किलोग्राम तूने पंप किया, मतलब अभी टोटल 4 किलोग्राम किया. नाउ प्रेशर इज 1/3 rho c square. That means it is 1/3 m dash upon m c square. तूने मास डबल किया, प्रेशर डबल हो जाएगा. 2 किलोग्राम एयर ऑलरेडी था, हम लोगों ने 2 किलोग्राम पंप किया. Can I say mass is becoming 4 times, pressure is becoming 4 times? This was question number 15. चलो बैक 13 to 21 में और कुछ. I hope you are very comfortable with my speed. 20 20 20 20. मैं मारूं कि तुम मारेगी अपने आप को? How much should be the pressure increase in order to decrease the volume by 10%? याद करो, काफी सालों पहले की बात है. क्या डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज. प्रेशर की वॉल्यूम. वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 10%. So pressure should increase by 10% is wrong because it is a hyperbolic graph. Right? So मेरा आंसर 10 से ज्यादा होगा कि 10 से कम? कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. 11% के आसपास. राइट? 10% से ज्यादा वाले कितने ऑप्शन हैं? अच्छा 2-3 होते सपोज, तो सॉल्व करके बताता हूँ. हाँ, 2-3 होते तो सॉल्व करके बताता हूँ. अब इसको सॉल्व कैसे करने का? ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था. सोल्यूशन ध्यान से सुनो. V1 is V, V2 is 90% of V because it is reduced by 10%. P1 is P, P2 is what? P1 V1 is equal to P2 V2. P into V1 is V. P2 I do not know. V2 90% of V. V gone. P2 is 10 upon 9 of P. 10 upon 9 is 1.111111. That means it is 11.11%. The new pressure is how much? New pressure पूछ रहा हूँ. 111.11. That means increment in the pressure is 11.11. नया pressure पूछा तो 111.11. Change in pressure पूछा तो 11.11. Increase. Simple logic है. अब इसमें स्टूडेंट रॉन्ग किधर जाते हैं मैं बोलता हूँ. सर वॉल्यूम 10% कम हुआ, देखो प्रेशर 10% बढ़ा. याद करवाता हूँ स्टीफन्स लॉ. टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 4%, एनर्जी इंक्रीजेस बाय, एक ऑप्शन 16% था और एक 17% था, और हम लोगों ने 16% मार्क नहीं किया था. इनफैक्ट लास्ट टाइम आप लोगों के असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस में मैंने ये कमेंट लिखवाया था. 1%, 4%, 10%, 40%. हाइपरबोलिक ग्राफ में यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट परसेंटेज. This was question number. This was 20. Any doubt in 21? Anybody? मैं ऐसा अभी रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाऊंगा. 19. बहुत इजी है बेटा. The mean kinetic energy of gas molecule मतलब average kinetic energy. It depends on temperature. It has got nothing to do with pressure. 3/2 kT.
Very simple. Kinetic energy per molecule is 3/2 kT. Boltzmann's constant होता है. इसका मतलब kinetic energy, average kinetic energy per molecule depends only on temperature. Pressure से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है. Okay. 25 में किसी को डाउट? Sure. 27 to 30 में किसी को डाउट? 29, 29, 29, 29, 29. थोड़ा टफ है. थोड़ा टफ है. The molar specific heat of oxygen at constant pressure, underlying constant pressure, is 7.03. R value is 8.31. The amount of heat taken by 5 moles of oxygen when heated at constant volume पूछा है उन्होंने. Apply common sense बेटा. Cp minus Cv is equal to R by J. इसका मतलब Cv पूछा है ना, Cv is equal to Cp minus R by J. Yes और Cp का वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली 7 ले लेता हूँ. अप्रोक्सीमेटली चलेगा. R by J, R का वैल्यू कितना दिया है? 8.31. अब ये 8.31 दिया है ना, इसके लिए मैं इसको 4.15 ले रहा हूँ. अगर ये 8.4 दिया होता तो मैं 4.2 लेता. Anyways, you know that this ratio is 2. This ratio is 2. So what is Cv? Cv is equal to 5. अभी तुझे ढूंढना है बेटा dQV. Is it n Cv dt? कितना मोल्स है? 5. Cv कितना आया? 5. टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? The answer should be approximately 250. मैंने बार बार बोला था बेटा मेयर ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हीट 1 में किया था, हीट 2 की बुक में आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में आएगा. मेयर ऑसिलेशन इतना परफेक्ट आना चाहिए तुम लोगों को. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर. खोपड़ी मार्क करो. अच्छा था. क्वेश्चन नंबर 30 to 33 में किसी को डाउट? 30 to 33. 30 to 33. 33. 1 gram of water on vaporization. काफी सालों पहले की बात है बेटा. कौन गया? इधर गया? ये मुझे लगता है इधर लिख के रखना पड़ेगा. LF 80, LV 540, 80.002412 minus 0.002412, 40 नहीं, पहला वाला वैल्यू 500, दूसरा वाला वैल्यू 40. This is internal, this is external, this is internal, this is external. ये पूछा है. हीट 1 का बुक असाइनमेंट नंबर लिख के भेजता हूँ ग्रुप पे. उसमें चारों प्रॉब्लम मैंने लाइन से सॉल्व किया था. सॉल्विंग का वे L is equal to PdV upon mj. राइट. वॉल्यूम इज 1671 and 1. Pressure is 1.013 into 10 to the power 5. Volume is 1671 minus 1 into 10 raised to minus 6 upon mj. राइट. टाइम शायद 1 किलोग्राम दिया होगा. हाँ तो ठीक है, 10 to minus 3 किलोग्राम. राइट. ये जब सॉल्व करेगा ना बेटा तो ये आंसर तेरा आएगा 40.27. लिखो. फॉर द डिटेल्ड सॉल्यूशन रेफर बुक हीट 1. The assignment on specific heat and latent heat, I think it was third assignment. I think so, not sure. उसमें बेटा लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चंस है ना 40 से लेके 50 के बीच में, उसमें ये लंबे चौड़े सॉल्यूशंस दिए हैं मैंने. ये वैल्यू ऐसे मैंने हवा में नहीं दिया है. ये वैल्यूज प्रूव किए थे मैंने हीट 1 के बुक में. बाद में बोला है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रख सकते हो. पहले मैंने ये प्रूव किया था, बाद में बोला था स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखो. नेक्स्ट वन. Which question was this? 33. 35 to 40 में किसी को कोई डाउट? 35 to 40 में किसी को कोई डाउट? बोला ही नहीं था ना? बोला? ओके. हाँ बराबर. 35 to 40 में किसी को कोई डाउट? आप लोग जब DCT लिखोगे ना
तब तक ये 6 पेजेस में भेजता हूँ प्रिंटिंग के लिए. बिफोर यू गो you will get practice paper 1 and 2 का complete solutions. We still have little time, so I would like to start with some part of assignment number 2. Maybe first 10 questions. Maybe first 10 questions. चलो we start. ओके असाइनमेंट 2. सो प्रैक्टिस पेपर 1 एंड 2 मैंने जो भी 65 एमसीक्यूज दिए थे, ऑल डाउट्स डिस्कस्ड. आप लोगों ने झूठ बोला था मुझे कि सर इसमें 2-3 डाउट है, इसमें 3-4 डाउट है. 20-25. हाँ लेकिन वो तो अलग अलग लोग हैं, तो कंबाइंड वे में तो फिर तो कम है, बराबर है. नहीं तो 65 से ज्यादा भी डाउट्स हो सकते हैं. आर वी ऑन असाइनमेंट 2? First 10 MCQs. I think we can solve first 10. शुरू करें बेटा. First one. अब ये मैंने होमवर्क बोला ही नहीं था, मतलब आराम से पढ़ के सोच के आंसर दो. The average number of molecules per unit volume should remain constant because this is what we call it as Avogadro's number. अगर ये रूम में बेटा मैंने टेम्परेचर बढ़ाया या तो प्रेशर कम किया या तो एक बढ़ा एक कम किया, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फर्क पड़ने वाला है. मान लो आप 60 लोग बैठे हो इधर, मान लो, राइट. अभी मैं ये रूम का टेम्परेचर कम करूँ, प्रेशर बढ़ाऊँ, उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फर्क पड़ने वाला है क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टिल गोइंग टू रिमेन द सेम. सो आंसर इज रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेन्स कांस्टेंट. आई वांट यू टू अंडरलाइन द वर्ड्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट. कॉमन सेंस बेटा. सेकंड क्वेश्चन assumptions में किया था हम लोगों ने. When the molecules collide with each other, what type of collisions are they? Perfectly elastic. And perfectly elastic collision में क्या होता है? Momentum भी conserve होता है और kinetic energy भी conserve होता है. तो इधर argument लिखो. Refer the assumptions of kinetic theory of gases. Refer the assumptions of Cartesian. Your answer is option C. Your answer is option C. Question number 3. Question number 3. Question number 3. The actual volume occupied by the gas molecules is, come on. The mass of the molecule is independent of, आराम से, number of molecules present in 1 mole. करेक्ट है. अभी बिकॉज उन्होंने बोथ ए एंड सी दिया है तो मुझे सी भी चेक करना पड़ेगा. द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. मास ऑफ द मॉलिक्यूल तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, उससे प्रेशर वॉल्यूम को क्या फर्क पड़ेगा? यस और आपका मास है तो आपके ऊपर सराउंडिंग एयर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, उससे आपके मास को फर्क नहीं पड़ेगा. मैं नहीं बोल सकता कि टेम्परेचर कम हुआ इसलिए आपका मास 60 था तो 55 हो गया. मैं तो फिर पूरा टाइम -10 डिग्री सेल्सियस में रहूँगा. आई वोंट बी ओबीस देन. आई डोंट नीड टू एक्सरसाइज और आई डोंट नीड टू कंट्रोल माय डाइट. स्टे इन लोअर टेम्परेचर. सो आंसर इज बोथ ए एंड सी, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड सी. क्वेश्चन नंबर 5. द गैस विच सेटिस्फाइज ऑल द assumptions. ये तो मतलब मजाक था. उन्होंने आइडियल वर्ड और परफेक्ट वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है कि नहीं ये पूछा, मतलब इसलिए आंसर इज बी एंड सी. Right? This is just to give you a feeling that physics is easy also sometimes. Question number 6 में बेटा लिखो, wait for the chapter fluid mechanics. Wait for the chapter fluid mechanics. ये क्वेश्चन का आंसर है viscosity. Viscosity. अब viscosity होता क्या है, ध्यान से सुनो. If this body is moving on my palm, इधर देखो बेटा सब लोग. If this body is moving on my palm and the same body is moving on the floor, where will it go faster? क्योंकि फ्रिक्शन कम है, इधर फ्रिक्शन ज्यादा है, right? So the way the motion of the body is opposed by a solid medium is called frictional force.
सेम वेज इफ आई थ्रो दिस बॉडी इन एयर, जिसका ग्रेजुअली स्पीड कम होते जाएगा. रीजन द सराउंडिंग एयर विल ऑफर रेजिस्टेंस. So when the resistance is offered by liquid medium or gaseous medium, it is called viscous force. एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है बेटा. ये पेन लो और इसको बकेट ऑफ वाटर में डालो, तो जब तक ये एयर में है फास्ट जाता है. जैसे इसने वाटर में एंटर किया ये स्लो हो गया, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज जस्ट 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000. Let me give you a very simple example. Come on, I am walking. And now I am walking on the floor of the swimming pool and there is water up to 3 feet. Where will I walk fast? इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज विस्कस फोर्स. जब मैं एयर में चल रहा तभी भी मेरे बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है. आप लोग जब भागोगे या तो बहुत चलोगे, थोड़े टाइम के बाद आप थक जाओगे. रीजन दैट इज समबडी टू ऑफर रेजिस्टेंस टू योर बॉडी एंड दैट समबडी इज एयर. So mind you, the force, the resistive force offered by liquid medium or gaseous medium means fluid is called viscosity. Argument लिखना है तो लिख लो. इसका आंसर viscosity है, but एकदम genuine explanation आप लोगों को fluid mechanics में मिलेगा. खाली viscous force का argument लिख के रखो. The resistive force offered to a moving body, the resistive force offered to a moving body by liquid medium or gaseous medium, by liquid medium or gaseous medium is called viscous force, and the by liquid medium or gaseous medium is called viscous force, and this phenomenon is known as viscosity, and this phenomenon is known as viscosity. ये फिलहाल क्वेश्चन इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा बेटा क्योंकि अभी हम लोगों ने मैक्सवेल्स लॉ भी नहीं किया है. बट माइंड यू, दिस काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन्स मैक्सवेल्स लॉ. इट एक्सप्लेन्स ब्राउनियन मोशन, दैट तो वी नो. इट एक्सप्लेन्स इवोपरेशन आल्सो. इट डज नॉट एक्सप्लेन विस्कोसिटी. क्वेश्चन नंबर 7. ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करो. Forget about molecule. I am giving you much heavier thing than that. Much heavier thing. I am firing a bullet from the revolver. Does the bullet come out of the barrel and fall down on the ground? Right? नहीं ना. Bullet heavy है, लेकिन उसका स्पीड भी तो सामने 300-350 मीटर्स पर सेकेंड है. तो जब तक उसके पाथ में कोई नहीं आता तब तक वो स्ट्रेट लाइन में जाता है. Once its kinetic energy is used up, then it will fall in a parabolic path. गैस मॉलिक्यूल का तो डबल एडवांटेज है, वो तो बुलेट से कहीं ज्यादा स्मॉल है, कहीं ज्यादा, प्लस उनका स्पीड बुलेट से भी ज्यादा है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सोचो 32, मॉलिक्यूलर वेट इज 32, फिर भी उसका स्पीड 460 है. दैट मींस इट इज मोर देन स्पीड ऑफ बुलेट, इट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड. सो नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन. ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज molecules are of same small dimension. 1. Molecules have very small mass. This is correct. Molecules have very large velocity. This is also correct. So answer is both B and C. Answer is both B and C. तो इसको आप एक वन लाइन में लिख सकते हो. This can be compared with the motion of the bullet fired from the revolver. This can be compared with the bullet fired from the revolver. Bullet moves in a straight line, no? तो मॉलिक्यूल्स तो उनसे भी कम साइज में है, राइट? एक कॉमन सेंस अप्लाई करो. ग्रेविटी का इफेक्ट मतलब W इज mg, राइट? तो जिसका m ज्यादा उसका वेट ज्यादा. मॉलिक्यूल्स का वेट तो एकदम कम है, तो दे आर हार्डली अफेक्टेड बाय ग्रेविटी. इन फैक्ट देयरफॉर दे से दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी. आंसर इज बोथ B and C. क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ट्राई करोगे बेटा? किसी ने तो मुझे नॉर्मली वर्ड पूछा था, ये वैसा ही क्वेश्चन. अ हैवी सिंगल गैस मॉलिक्यूल अंडरलाइन सिंगल गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास 2.5 × 10⁻²5. अभी देखो ये वैल्यू से आपको पता चल जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स कितने स्मॉल होते हैं, उनका मास कितना कम होता है. यस और नो? अंडरलाइन दिस नंबर बिकॉज दिस कैन हेल्प यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, mass of the molecule is 2.5 × 10⁻25 is moving to and fro. Everybody here
टू एंड फ्रो, गया टकराया वापिस आया, यस और नो. विथ अ क्यूबिकल कंटेनर, मतलब सारे फेसिस स्क्वायर्स है, यस और नो. With the speed 200 meters per second, the cubical container is having side 5 meter. Then the momentum gain by the surface and that means 3 collisions. मतलब इसमें जो लेंथ दिया है ना वो उल्लू बनाने के लिए दिया. लेंथ कब यूज होता है वो भी बोलूंगा मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वॉल है, दिस इज द क्यूबिकल कंटेनर, राइट. मॉलिक्यूल इधर से स्टार्ट हुआ, इधर गया, टकरा के वापिस आया. So what is initial momentum? mu. What is final momentum? Minus mu. What is change in momentum magnitude wise? 2 mu. 2. Please help me with mass of the molecule. Minus 25. And this is 200, no? 200. This is 5. 5 2s are 10. So this is 10. 1000 into 10 to minus 25. That means my answer is 1 into 10 to minus 22. चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. लेकिन ये हुआ बेटा 1 कोलिजन के लिए. Therefore this is 1 into 10 to minus 22. 3s are for 3 collisions. उन्होंने जो लेंथ दिया ना वो कब यूज होता? जब उन्होंने फोर्स पूछा. लेकिन फिर उसके लिए उनको टाइम भी देना पड़ता, because force is change in momentum upon time, and then force upon area is pressure. तो area of one wall is a side square. मतलब उन्होंने जानबूझ के आपको एक्स्ट्रा डेटा दिया कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग ये सोचो कि यार लेंथ का यूज किधर करने का, किधर भी नहीं करने का. लेंथ इज गिवन एज एक्स्ट्रा डेटा. पहले ये सोल्यूशन लिखो, लास्ट में मैं एक सेंटेंस लिख पाऊंगा. Length of the cubical container is given as extra data just to misguide you. Diagram बनाना है इसमें. Call this as wall 1 and call this as wall 2. So it goes to wall number 2 and it comes back from wall number 2 to wall number 1. So this is called to and fro motion. Your answer is 3 into 10 to minus 22. अब एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट देखो ब्रैकेट में. नोट हियर द लेंथ ऑफ कंटेनर इज गिवन फॉर कंफ्यूजन ओनली. लेंथ कब यूजफुल होता? अगर उन्होंने प्रेशर पूछा. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. एरिया ऑफ वन वॉल ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर इज साइड स्क्वायर. हो गया. Now we are coming to the question which you asked me, कि अगर नॉर्मल कोलिजन नहीं हुआ, एंगल पे कोलिजन हुआ तो क्या? Okay, again please don't start with me. Question number 8 and 9 both are very good. Mark both of them stars. 9th question ध्यान से बेटा. 9th question ध्यान से. Do not start with me. They have given me this diagram. They have I think given me cubical container. Am I right? They have already given me cubical container. इसमें गैस मॉलिक्यूल वॉल नंबर 1 से वॉल नंबर 2 पे ऐसे नहीं जा रहा है. दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, लेकिन ये ऐसे जा रहा है. यस और नो? सो द स्पीड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 200 meters per second. If a molecule of mass 5 into 10 to minus 25 kilogram is moving with velocity 200 meters per second, underline 200 meters per second, inclined with horizontal at an angle of 60. Common sense apply करो. Common sense apply करो. If this angle is 60 degree, right? So इसका कौन सा component? Sin component की cos component? Normal component है. मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है. So can I say this is 1? अब जैसे इसको हम लोग ऐसे रिजॉल्व करेंगे ना, तो अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल हो जाता है.
Yes or no? So can I say this is m v cos theta? तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? एम वी cos थीटा. फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? माइनस एम वी cos थीटा. चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? माइनस 2 एम वी cos थीटा. लेकिन मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. सो इज इट 2 एम वी cos थीटा? तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन? उसमें नॉर्मल इंसिडेंस था. यस और नो? तो cos थीटा विल बी cos 0. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है बेटा अपना. दिस इज नॉर्मल. तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल 90 नहीं, एंगल 0, बिकॉज़ द एंगल इज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. मास ऑफ द मॉलिक्यूल बोलो प्लीज. 5 into 10 to minus 25. 5 into 10 to minus 25. What is the molecular speed? 200. 200. And what is angle? Cos of 60 degree is half, no? तो ये और ये क्या है? तो ये आपका आंसर है. 1000 into 10 is to minus 25. 10 is to minus 22 is the answer. 10 is to minus 22 is the answer. So what was the difference between previous question and this question? Previous question में मैं 2 mv cos theta बोल सकता था, but there theta will be 0. Cos 0 is 1. इसका मतलब नॉर्मल इम्पैक्ट ज्यादा होता है कि एंगुलर इम्पैक्ट ज्यादा होता है? नॉर्मल. एक इधर देखो सब लोग, इधर देखो. मैं गोली ऐसे मारूंगा तो ये बेटर इम्पैक्ट है कि एंगल पे मारूंगा तो बेटर इम्पैक्ट है? नॉर्मल ना, बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंस मतलब cos थीटा इज cos 0 इज 1 एंड दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ cos फंक्शन. अगर आप एंगल 30 लो, 45 लो, 60 लो तो cos थीटा कम हो गया ना, तो डेल्टा पी कम हो गया. तो अगर कोई मॉलिक्यूल जाके वॉल से टकराता है तो नॉर्मल वे में गया तो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है कि एंगल पे गया तो ज्यादा अच्छा होता है? समझा? रिपीटेशन रिक्वायर्ड. ये भी अच्छा क्वेश्चन था. दोनों को स्टार पोपड़ी मार्क करो. क्वेश्चंस 8 10 9 गुड. डन डन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 10 लॉजिकल, एकदम लॉजिकल है. पढ़ो. इट इज बेस्ड ऑन assumptions of kinetic of gases. कम ऑन पढ़ो और सोच के आंसर दो. They neither attract nor repel each other. Okay. When does a real gas behave like an ideal gas? When the temperatures are very high and the pressures are very low. Because they are not affected by low pressure conditions. Otherwise, they will not be able to exert proper force. And they are not affected by very high temperatures also. Mind you, monoatomic gases normally behave as ideal gases. Helium, neon, argon, etc. Because जब डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लोगे ना, अगर मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया तो दूसरा हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम को रोक के रखता है, बिकॉज दे आर बॉन्डेड टुगेदर. आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? आई रिपीट, इफ आई टेक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, so if it wants to create impact another hydrogen molecule because of the attractive force will not allow that molecule to create that good impact. But if you take helium, neon, argon, they are monoatomic, so they almost behave like perfect gases, ideal gases, right? So you can write one line argument: monoatomic gases like helium, neon, argon behave almost like ideal gases. Monoatomic gases like helium, neon, argon, etc. behave like ideal gases. Next one. 12th one. ये बेटा आगे आके गया क्वेश्चन. चलो सोच के बताओ. टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, अंडरलाइन आइडियल, उसका पोटेंशियल एनर्जी निग्लिजिबली स्मॉल होता है. दैट इज द रीजन, द नेम ऑफ द चैप्टर, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. सो द मेन एनर्जी कंसर्न विद गैस मॉलिक्यूल्स इज काइनेटिक. क्वेश्चन नंबर 13. मुझे लग रहा है तब तक आप कर पाओगे. हिंट देता हूँ. P1 V1 upon T1 is P2 V2 upon T2
करो खुद से. Don't forget to convert temperatures into Kelvin. प्रेशर पास्कल में दिया, पास्कल में दोनों प्रेशर, अच्छा पास्कल में दिया ना. वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर डबल. P1 V1 upon T1 is P2 V2 upon T2. T2 पूछा है. आपका आंसर पहले केल्विन में आएगा. ऑप्शन सेल्सियस में दिए हैं. अरे राइट हैंड साइड पे वर्किंग करना. तो एग्जाम के टाइम पे लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक रखनी. क्या आंसर आ रहा है बेटा? 927. 1200 केल्विन आ रहा है. पहले 1200 केल्विन आ रहा है. As you see, the options are in Celsius, means you have to subtract 273. Your answer is 927. बस इधर मार्किंग करके रखो. 13 पे स्टॉप करता हूँ because you should get enough time for DCT also. We will stop here. मुझे याद कराना. We have stopped at 13th question. Okay, we stop here. होमवर्क में आप लोगों का DCT जब तक चल रहा है ना, तब तक मैं होमवर्क बोर्ड पे लिख लूंगा. Okay.